आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के समुद्र में मिली अजीब आरी जैसी मुंह वाली मछली, देखने वालों की लग गई भीड़। संगारेड्डी जिला के गांव लिंगमपल्ली एक्स रोड पर पेश आया एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक की हुई मौत, काफी देर तक जाम रही ट्रैफिक। बंगाल में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। भगवंत मान 16 मार्च को लेंगे शपथ, बोले बसंती रंग से रंगा जाएगा भगत सिंह का गांव खटकर कला। उत्तराखंड में 19 मार्च को चुना जाएगा विधायक दल का नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं समुद्र में अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंसानों के लिए अछूता है। समुद्र की अंधेरी गहराई में अनेकों ऐसे जीव रहते हैं जो हर किसी को चकित कर देते हैं। इनमें कई प्रकार की मछली है। जब ये मछली इंसानों के हाथ लगती है तो इनकी बनावट देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ऐसी ही एक मछली कर्नाटक के पास समुद्र में मिली है। इसका मुंह आरी जैसा है। इसके मिलते ही बड़ी संख्या में लोग इसे देखने उमड़ पड़े। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर हो रहे हैं। इस मछली का नाम कारपेंटर शार्क या साफिश है। ये कर्नाटक के मालपे के पास समुद्र में मछुआरों के जाल में फंसी थी। इसके बाद मछुआरे इसे लेकर तट पर आ गए और ये मछली वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत संरक्षित श्रेणी में है। मछुआरों के चुंगल में आई इस मछली का वजन 250 किलो है। इसे सी कैप्टन नामक नाव से गहरे समुद्र में पकड़ा गया है। संगारेड्डी जिला के गांव लिंगमपल्ली एक्स रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। गांव लिंगमपल्ली जो कि एंडोले निर्वाचन क्षेत्र में आता है। लिंगमपल्ली गांव NH 65 पर है। NH 65 हाईवे LNT के अंडर में है। लोगों का कहना है कि एंडोले विधायक की लापरवाही है जो लिंगमपल्ली एक्स रोड पर रोड वाइंडिंग करके एक शेल्टर लगाया गया है, वहां पर कोई डिवाइडर नहीं बनाया गया है। जनता की सुरक्षा के बारे में लिंगमपल्ली गांव स्थानीय विधायक अंदोले निर्वाचन क्षेत्र और LNT को शिकायत की गई थी कि इस रोड पर कुछ सुरक्षा करे, मगर अंदोले विधायक ने इसे नजरअंदाज किया। आखिर इस तरह जिसके कारण काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पुलिस ने एक केस बुक करके जांच शुरू की। केपी न्यूज के लिए संवाददाता MT फैयाज की रिपोर्ट। నేషనల్ హైవే నంబర్ 65 మీద యాక్సిడెంట్లో ఇప్పటి వరకు 6 మంది చనిపోయారు. ఎల్ఎన్టీ యాజమాన్యం మొండి వైఖరి, ససేమీరా అంటున్న ఎల్ఎన్టీ యాజమాన్యం ఇక్కడ జాలీలు లేవు సార్, మధ్యలో జాలీలు లేవు. చిన్న చిన్న విలేజ్లకంతా హైదరాబాద్ నుంచి ఉమ్నాబాద్ వరకు మేము చూసాము. ప్రతి విలేజ్ కాడ ఇనుప జాలి ఉంది. యూటర్న్ తీసుకుని పోయి ఎక్కడికి వెళ్ళో అదే ప్లేస్లో చనిపోతున్నారు సార్. జాలి పెట్టమంటే పెట్టడం లేదు. మోరీ నీళ్లు తెచ్చి 65 మీద ఇడుస్తున్నారు సార్. ఆ మోరీ కట్టమంటే కూడా కట్టడం లేదు సార్. మొత్తం ఇబ్బందికరం సార్. బస్ స్టాండ్ లేదు, ఏం లేదు, అన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సార్. సర్వీస్ రోడ్ కూడా చాలా ఇక్కడ మొత్తం ఇల్లు ఉన్నాయి సార్. దాదాపు ఒక 150 మంది ఇల్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక 700-800 పాపులేషన్ నివాసిస్తుంది సార్. చాలా ఇబ్బందికరం ఉంది సార్. మొండి వైఖరి, ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు మొండి వైఖరి సార్. మీ డిమాండ్స్ ఏంది అసలు? డిమాండ్ ఏం లేదు సార్. జాలి ఒకటి, సైడ్లలో మోరీ ఒకటి. ఆయనకు తెలుసు సార్, అది ఆయనకు తెలుసు సార్. ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళకి తెలుసు సార్. రైట్ ఒకటి సార్. ఆయనకి ఎవరు వద్దంటారు అనేది వాళ్ళు చెప్పడం లేదు సార్. మీకు ఇప్పుడు ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చిర్రా? రాలేరు సార్, ఎవరు రాలేరు సార్. ఎంత గంట సేపు అధికారుల స్పందన లేదు సార్. పోలీస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? పోలీస్ వాళ్ళు వాస్తవానికి ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉంది. నేను వచ్చిన సంది 6 మంది చనిపోయారని మా ఏరియా ఎస్ఐ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు సార్. ఉన్నారు సార్ ఇక్కడనే. చేపిస్తామంటున్నారు. 20 days లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తామంటున్నారు. సార్ మీద పెట్టాం సార్. ఎమ్మెల్యే సార్ ఇప్పుడే ఫోన్ చేస్తామంటే మీరు పిలిచి ఇక్కడ వచ్చాము, క్లోజ్ చేస్తాం సార్. సార్ కూడా కావాలి, విద్యార్థులు చదువుకోనికి పోతారు, రోడ్డు దాటడానికి ఏరియా ఎమ్మెల్యే గారి మాట గౌరవం కంపల్సరీ కావాలి. చిన్న 5 సంవత్సరాల పిల్లలు చదువుకోనికి స్కూల్ కి పోతారు, దాటడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. వాళ్ళు టీచర్స్ పిల్లలను దాటిస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి గతంలో ఏమన్నా బిడ్ చేస్తానికి ఇట్లా వాళ్ళు ఎల్ఎన్టీ వాళ్ళు చెప్పారు సార్. అన్ని చేస్తామని చెప్పారు. చిన్న బిడ్ చేస్తామని చెప్పారు సార్. గతంలో యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు చిన్న బిడ్ చేస్తామని చెప్పారు. గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం ఇవ్వడం జరిగింది. వైస్ ఎంపీపీ గారి లెటర్ ప్యాడ్ ఇవ్వడం జరిగింది.
ఇప్పుడు ఏరియా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా సీరియస్ గా ఉన్నారు సార్, చేపిస్తామని చెప్తున్నారు. 20 రోజుల్లో చేపిస్తామంటారు. మండల ప్రజాప్రతినిధి ఎవరన్నా మండల ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడికి వాళ్ళైతే ఇప్పటిదాకా మేము చెప్పలేము సార్. వాళ్ళకి కూడా మీ తెలిసి ఎంపీ గారు ఏమంటున్నారు? మీ వైస్ ఎంపీ గారు వైస్ ఎంపీ గారు అదే అంటారు సార్, మొండి వైఖరిపై ఆయన ఇది చేస్తున్నాడు సార్. ఇంత మొండి వైఖరి ఉంటే ఎట్లా, మా విలేజ్ వాళ్ళంతా చనిపోతే ఎట్లా అని ఆయనకు మొత్తం దీనికి వచ్చింది సార్, విరక్తి చెందిపోయింది. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు సీరియస్ తీసుకుంటారు సార్, 100% 20 days లో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తామని చెప్తారు. टीआरएस के वरिष्ठ नेता गुथा सुखेंद्र रेड्डी रविवार को सर्वसम्मति से लगातार दूसरी बार तेलंगाना विधायक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। विधानसभा ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी की और केवल सुखेंद्र रेड्डी ने पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा सचिव डॉक्टर वी नरसिम्हा चारियोलो सोमवार को इस संबंध में औपचारिक घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी नगर पालिका में रविवार को तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद आधार पर पुलिस ने शूटर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त ने भी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के टीएमसी पार्षद अनुपम दत्ता की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने मामले में कथित कॉन्ट्रैक्ट किलर शंभुनाथ पंडित को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पंडित से पूछताछ कर रही है और इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अब 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवंत मान ने 16 मार्च खटकड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी पंजाबियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भाई बसंती रंग की पगड़ी पहने और बहनें बसंती रंग की चुन्नी या दुपट्टा ओढ़कर आएं, जिससे खटकड़ कला को बसंती रंग से रंगा जाए और भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की कसम उठाई जाए। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि 16 मार्च को भगवंत मान अकेले ही शपथ लेंगे। इस दिन कोई भी मंत्री शपथ ग्रहण नहीं होगा। भगवंत मान 16 मार्च को नवांशहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि बाकी मंत्री बाद में शपथ लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि हम पार्टी के हित में किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार है तो मैं, राहुल और प्रियंका इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनसे आग्रह किया कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक वो पद पर बने रहें। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया है, वहीं एक जवान घायल बताया जा रहा है। आईटीबीपी 53 बटालियन टीम सड़क निर्माण को सुरक्षा देने निकली थी। ये हादसा सुबह लगभग 8:30 बजे घटा। शहीद जवान का नाम राजेंद्र सिंह बताया जा रहा है और घायल जवान का नाम महेश लक्ष्मण है। ये घटना सोनपुर थाना क्षेत्र के डोंडरीबेड़ा के पास घटी। नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने इस खबर की पुष्टि की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह आईटीबीपी 53 बटालियन के जवान सड़क निर्माण को सुरक्षा देने निकले थे। सोनपुर थाना के डोंडरीबेड़ा के पास पहुंचते ही आईईडी बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक जवान शहीद हो गए और दूसरे घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को मिली जीत का रंग अब बाजारों में भी दिख रहा है। होली कुछ ही दिनों में आने वाली है और ऐसे में प्रदेश के बाजार बीजेपी के रंग में डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाजारों में पीएम मोदी मास्क, गुलाल और पिचकारी खूब बेची जा रही है। पीएम मोदी मास्क को लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी काफी डिमांड भी है। एक दुकानदार के अनुसार मोदी मास्क की मांग ज्यादा है और इसकी बिक्री भी अच्छी है। पिछले 2 साल के विपरीत इस बार कारोबार अच्छा चल रहा है। दरअसल कोरोना के कारण 2 सालों से लोग होली का त्योहार खुलकर नहीं मना पा रहे थे। कड़ी पाबंदियों के बीच ही 2 सालों से होली मनाई जा रही थी, लेकिन कोरोना के मामले कम होने के कारण इस वर्ष धूमधाम से त्योहार मनाया जाएगा। वहीं हाल ही में प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए हैं, जिसमें बीजेपी ने बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापसी की है। ऐसे में प्रयागराज के बाजारों में स्पेशल तरह की पिचकारी और मास्क बेचे जा रहे हैं। बच्चों और लोगों द्वारा पीएम के मास्क और पिचकारी खूब खरीदी जा रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन चुनाव में एक बार बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। अब राज्य में सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने होली के बाद 19 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शिरकत करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री 20 मार्च को शपथ ले सकते हैं। फिलहाल बीजेपी प्रदेश संगठन की तरफ से निर्वाचित विधायकों को होली के बाद देहरादून में मौजूद रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का सारा श्रेय पीएम मोदी को दिया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर कहा कि हमें बीजेपी से उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी जीत मिलेगी। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त जोश और गतिशीलता वाले व्यक्ति हैं। उनमें कुछ चीजें हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं। खासकर राजनीतिक रूप से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बड़े अंतर से जीतेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। बीते शुक्रवार को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के परपोते जिब्रान रेहान रहमान का विवाह हुआ। इस विवाह की सबसे खास बात ये रही कि एक महिला काजी ने शादी की रस्में पूरी करवाई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक इसे 57,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। जिस महिला ने काजी के तौर पर निकाह करवाया वो योजना आयोग की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। उनका नाम है सैयदा सैयदैन हमीद। रिपोर्ट के अनुसार रहमान का वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली की बेटी उर्सिला अली से निकाह जामिया नगर स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन के आवास पर हुआ। पूरे रिवाज के साथ सैयदा सैयदैन हमीद ने दोनों का निकाह करवाया। सोशल मीडिया पर सैयदा के इस
पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। लंदन की ट्यूब रेल प्रोजेक्ट के व्हाइट चैपल स्टेशन की पहचान बताने के लिए अब साइनबोर्ड में अंग्रेजी भाषा के साथ बंगाली भाषा में भी स्टेशन का नाम लिखा गया है। इस खबर के चर्चा में आने के बाद अब भारत से लेकर बांग्लादेश तक में इसकी चर्चा हो रही है। इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके खुशी जताई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लंदन के प्रशासकों ने जो फैसला लिया है उस पर उन्हें गर्व है। इससे पता चलता है कि दुनिया में करीब 1000 साल पुरानी भाषा का रुतबा और महत्व पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के समुद्र में मिली अजीब आरी जैसी मुंह वाली मछली, देखने वालों की लग गई भीड़। संगारेड्डी जिला के गांव लिंगमपल्ली एक्स रोड पर पेश आया एक दर्दनाक सड़क हादसा, एक की हुई मौत, काफी देर तक जाम रही ट्रैफिक। बंगाल में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। भगवंत मान 16 मार्च को लेंगे शपथ, बोले बसंती रंग से रंगा जाएगा भगत सिंह का गांव खटकर कला। उत्तराखंड में 19 मार्च को चुना जाएगा विधायक दल का नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।